Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, in last lecture, we have completed till question number 11. Now, today, I'll start with the next question, question number 12. What's given here in this question? In figure 7.35. Now, look here. In this figure, there is a quadrilateral PQRS, which is a rectangle. Okay, so quadrilateral PQRS is a rectangle. If PQ is equals to 14 centimeter, means measurement of PQ is 14 centimeter. ओके PQ का मेजरमेंट क्या है 14 सेंटीमीटर. ठीक है. देन QR is equals to 21. ये कंप्लीट मेजरमेंट QR का क्या गिवन है 21 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो रेक्टेंगल है पर्टिकुलर रेक्टेंगल उसका लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. Then what you have to find the areas of the part X, Y and Z. Now look, this rectangle is divided into three parts. Okay, the part X, part Y and Z. So what you have to do, you have to find out the areas of these three parts. Now look, first we have to find the area of part X. Now look, part X is a okay, it is formed of two corresponding radii and one arc, right? So means that is a sector. Okay, so part X is a sector having radii Q, PQ, right? क्या है इसका रेडियस PQ. ओके, सो रेडियस PQ है, आपको क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है. सो नाउ यू हैव द रेडियस. नाउ लुक, ये जो सेक्टर है राइट दैट इज फॉर्म्ड ऑफ दिस आर्क. ये जो सेक्टर है उसका एंगल क्या होगा surely it will be of 90 degree. Why so? Because each angle of rectangle is of 90 degree. So therefore ये जो एंगल Q है राइट वो भी क्या रहेगा 90 डिग्री का. सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर. So you can use the formula for the sector, that is theta upon 360 into pi r square. So by using that formula you can easily calculate the area of X part. After that you can calculate the area of Y part by using again the formula, that is theta upon 360 into pi r square. But here you need to find the radius first. Okay, that's not given. You will find out the radius and then you will find out the area. After that you have to find the area of part Z. So now look, let's start solving the question number 12. First I'll draw the diagram that is given to us and then we'll write what is given information. Okay, here it's a rectangle. Okay, okay, it's a rectangle having two parts. This is a sector and this is another sector. Okay, now we'll label it. That is given as P Q R S. Part X, part Y, and here it's part Z. Okay, so now here we will write what is given first. Okay, लिखेंगे पहले क्या given है. Okay? So given क्या क्या है हम लोग को PQ given है right. PQ is equals to 14 centimeter. PQ is equals to 14 centimeter. Then QR. QR is equals to 21 centimeter. Now we will consider that they both are intersecting at point M. Okay. And here we will consider this as point M. Okay. Now look, first we have to find the area of sector, area of this part X. Okay, which is a sector. Okay. So now area of part X is equals to theta upon 360 into pi r square, right? Now theta की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाला जो सेक्टर है उसमें एंगल क्या है Q, that is 90 degree. So here you will write 90 upon 360 into pi. Pi की वैल्यू क्या रहेगी 22 upon 7 r square. रेडियस क्या गिवन है PQ है राइट, रेडियस है 14, so 14 square. Now let's solve it. 90 upon 360 into 22 upon 7 into 14 square means 14 into 14. Okay. Now 7 ones are 7, 7 twos are 14. 0 0 will get cancelled. 9 ones are 9,
9 fours are 36, right? So now you are having remaining numbers 22, 14, 2, and here it's 4, right? So now we will write what is remaining. Okay. क्या क्या remaining है? 22, 14, 2, and then here it's 4. Okay. So now you can cancel 2 and 4. 2 ones are 2, 2 twos are 4. Again 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 ones are 2. Means 11 and 14 are the remaining terms. So you will multiply 11 and 14 to get the final answer. Okay. Means 11 into 14. So now let's multiply 11 and 14 to find out the area of part X. So 11 into 14. 14, 11, 4s are 44. Right? Now you will add them. 4, 5, 1 means क्या मिला आपको फाइनल आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर means area of sector PQM, right? That is area of part X is 154 centimeter square. Now you have to find out the area of part Y. So part Y is also a sector having the radius MR, but हम लोग का MR का measurement नहीं पता है. Now look, PQ और QM का measurement same होगा, 14 होगा. Why so? Because they are the radii of the same sector, right? Same arc. Okay, radii of same arc. राइट अब आपको क्यू एम का मेजरमेंट पता है. क्यू आर तो ऑलरेडी गिवन है. क्यू आर क्या है? क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर बिकॉज क्यू एम आर तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट? सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट. क्यू आर की वैल्यू क्या है? क्यू आर की वैल्यू जो हम लोग को गिवन है दैट इज 21. सो 21 इज इक्वल्स टू क्यू एम. क्यू एम का वैल्यू क्या है? 40 प्लस एम आर. अब हम लोग शिफ्टिंग करेंगे. ओके, सो एम आर इज इक्वल्स टू 21 माइनस 40. एम आर इज इक्वल्स टू 21 माइनस 14. मतलब आप क्या करोगे? 21 में से 14 माइनस करोगे. So when you will subtract, you will get 7 centimeter. Means MR की वैल्यू क्या मिली आपको? यहाँ पर 7 centimeter, ये वाला पार्ट. Okay, now you got the radius. And आपको थीटा तो पता ही है. सब एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के, है ना? Each angle is of 90 degree. So we will use the formula. Area of part Y is equals to theta upon 360 into pi r square. Okay. Now theta, that is 90 degree. 90 upon 360 into pi, that is 22 upon 7 into r square means 7 to 7 square, right? Now you will cancel it. 7 and 7 will get cancelled. 0 0 1 9 1 9 9 4 36. Now remaining terms क्या है? 22 and here 1 7 and 4. Okay, so now multiply 22 and 7 and divide it by 4. Okay, so now 22 into 7 क्या मिलेगा? क्या रिमेनिंग टर्म्स है? 22 7 and 4. So now look, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. 11 7s are 77. Now divide it. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 कैरी करे आपने. 2 8s are 16, 1 कैरी करे. अब 2 के टेबल से 1 कैंसिल नहीं हो सकता है, तो डेसिमल एंड 0 इंक्रीज करोगे. सो 2 5s are 10. क्या मिला फाइनल आंसर आपको? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ यू गॉट द एरियाज ऑफ सेक्टर्स. ओके, मींस आपको पार्ट एक्स और पार्ट वाई दोनों का एरिया मिला. ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? ये जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट जेड. ओके, नाउ लुक हियर, ये दोनों तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का, है ना? दोनों सेक्टर का फॉर्मूला आपने लगाया और फाइंड कर लिए. बट ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है उसका, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सो नाउ लुक, आप क्या करोगे? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे. क्या करना है आपको? ये पूरा कंप्लीट पोर्शन का एरिया मिल जाएगा आपको. अब उस कंप्लीट पोर्शन के एरिया में से आप ये वाला पार्ट और साथ में ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो आपको रिमेनिंग पार्ट ऑब्वियसली मिल जाएगा, राइट? समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे?
एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और उस रेक्टेंगल के एरिया में से आप क्या करोगे, फिर ये दोनों का समीशन माइनस कर दोगे. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व. Okay. Okay, now look. Area of rectangle. Area of rectangle is what? Length into breadth. So now length क्या है अपने पास 21 है ना, QR. और breadth क्या है PQ. PQ की वैल्यू क्या है हम लोग के पास 14. So when you will multiply 21 and 14, multiply it and get the final answer. 21 4s are 84, right? 0. 21 ones are 21. Add it, you will get 294, right? So 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या मिला आपको? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब पार्ट y फाइंड करने, पार्ट z फाइंड करना है, राइट? पार्ट z फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस पार्ट x प्लस पार्ट y. ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ part z is equals to area of rectangle minus area of part x plus area of part x plus area of part y. Area of part y. ठीक है, now we'll substitute the values. Okay, so देखो क्या हम लोग के पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है 154 माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स की वैल्यू क्या है 150, सॉरी रेक्टेंगल की वैल्यू है 294, राइट? सो 290 एंड यहाँ पे 154 प्लस 38.5. Okay, now you will add it and then subtract it from 294. Okay, so 294 minus 154 plus 38.5 क्या करना है आपको, ये ऐड करना है. so क्या मिलेगा आपको 8 plus 4 12, 1 carry 5 3 8 plus 1 9 192.5. okay, 192.5 means आप क्या करोगे 294 में से 192.5 माइनस करोगे. ओके, 192.5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो नाउ जीरो है तो जीरो माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो आप क्या करोगे बोरो. 10 minus 5 5, 3 minus 2 1, 9 minus 9 0, 2 minus 1 1. सो क्या मिला आपको फाइनल आंसर 101. और यहाँ पे आप क्या करोगे, डेसिमल पुट करोगे, दैट इज 0.5. ओके, सो फाइनल आंसर क्या है आपका 101.5 centimeter square. Therefore, area of part Z is 101.5 centimeter square. Now, at last, your final answer in words will be, फाइनल आंसर आपको लिखना है वर्ड्स में. ओके, देयरफॉर एरिया पार्ट x is 154 centimeter square, part y is 38.5 centimeter square, and part z is 101.5 centimeter square. Okay, thus we have completed question number 12. Next, last question, question number 13. Question number 30. Triangle LMN is an equilateral triangle. Okay, triangle LMN क्या है, equilateral triangle है, ये given है. तो equilateral triangle means all sides should be equal. So LM का measurement given है 14 centimeter. ठीक है, as shown in figure 3 sectors are drawn. अब देखो ये 3 sector है, sector 1, sector 2, sector 3. Okay, with vertices as centers and radius 7. मतलब आप लोग को बोला गया कि radius क्या है उन लोग का 7, मतलब ये क्या है 7 सेंटीमीटर. और फिर क्या गिवन है आपको, हाँ, और क्या है, ये इनके वर्टाइसेस है, सेंटर्स. ओके, नाउ आपको फाइंड क्या क्या करना है. देखो, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट. सबसे पहले क्या करोगे आप, ट्राइंगल एलिमेंट का एरिया फाइंड करोगे. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके. ओके, व्हाट्स द फॉर्मूला, √3/14 into
साइड स्क्वायर, राइट। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट। देन क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। क्यों, क्योंकि तीनों भी सेक्टर का एरिया सिमिलर ही होगा, राइट। मीन्स सबका रेडियस सेम है ना, वर्टेक्स। सो किसी भी एक का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, मतलब तीनों का समीशन। फिर फोर्थ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा, आप ट्राइंगल के एरिया में से जब तीनों का टोटल माइनस कर दोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 30। At lecture time is equal to sleeping you. Lecture allowing unmute after lecture for response at the time. At that time you have to check. Okay, now look. Diagram is somewhat like this. Okay. आपको ये वाला फर्स्ट L M N X Y Z. Okay. Now let's फाइंड आउट फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। आपको LM गिवन है ना, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे LM इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नाउ लुक, first area of triangle LMN। since LMN triangle is in equilateral triangle, therefore हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, √3/4 इंटू साइड, साइड की वैल्यू गिवन है 14 है ना, 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। नाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, 14 square, so √3/4, 14 square is 196, right? So now 4 ones are 4, 4 4 ones are 4, 4 fours are 16, the remaining क्या रहा, 3, राइट। तो यहाँ पे आप 3 कैरी फॉरवर्ड करोगे, सो 4 9 था 36, तो क्या मिला आपको, √3 इंटू 49। ओके, अब आपको गिवन है √3 इंटू 49, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, तो 73, तो हम लोग क्या करेंगे, 49 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1.732 इंटू 49, तो क्या मिलेगा आपको, फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, ना मल्टीप्लाई 1.732 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, सो नाउ अभी नेक्स्ट फाइंड करना है आपको क्या, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर LXZ। ओके, दिस वन, अपर वन। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर LXZ। ओके, LXZ. So now formula is what, 388 upon 360 into pi r square. Now we'll substitute the values. Theta की value क्या रहेगी, since it's an equilateral triangle, right? So each angle will be of 60 degree. So 60 upon 360 into pi. Pi की value आएगी 20 upon 7. Radius given is 7 square means 7 into 7. Now we'll solve it. 7 7 will get cancelled. 0 0 will get cancelled. The 6 6 the 30. The remaining is 22 7 and 6, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो सॉल्व करेंगे हम लोग, 22 7 6। ओके, नाउ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, अब आपको क्या करना है, नाउ विल राइट योर रिमेनिंग टर्म्स। ओके, क्या क्या रिमेनिंग टर्म्स थे, 22 7 and then 6। okay, so we'll write here 22 7 6। now let's solve it। okay, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6। okay, now 11 7 are 77। okay, so now 77 को क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड करना। ओके, सो नाउ 3 3 1 जा 3, रिमेनिंग क्या है 1 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपने। नाउ 3 5 जा 50, राइट। क्या लिया आपने, 3 फर्स्ट क्या लिया आपने, 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग था, कैरी फॉरवर्ड करे 3 5 जा
15 टू रिमेनिंग है, कैरी फॉरवर्ड करें। अब डेसिमल लगाओगे, 0 इंक्रीज करोगे, 3 6 18, अगेन 3 6 18, क्या मिला आपको 25.66 मींस समवॉट 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, अब फाइंड क्या करना है आपको, टोटल। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, आपको टोटल फाइंड करना है तीनों भी सेक्टर्स का। नाउ सिंस दे हैव द सेम रेडियाई, राइट, टोटल एरिया क्या रहेगा, तीनों का समीशन मींस आप क्या करोगे, एक ही जो एरिया मिला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। टोटल एरिया ऑफ 3 sectors is equals to 3 times area of sector LXZ, right? 3 into area of sector LXZ, ठीक है। So now 3 into area of LXZ is what, 25.67। अब क्या करोगे आप, 3 को 25.67 से मल्टीप्लाई करोगे, so you will get 7 to the 21, 1 carry 2 1, 18 plus 2 20, 0 2 carry, 10 to the 15 plus 2 17, 7 1 carry 7, 3 to the 6 plus 1 7, 2 के बाद डेसिमल लगाओगे, so क्या मिला आपका आंसर 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, तीनों का सम टोटल। फिर फाइंड क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन में आपको, ये जो शेडेड रीजन है ना उसका एरिया फाइंड करना है। सो सिंपल है, आप क्या करोगे, ट्राइंगल में से ये टोटल सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे, राइट। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equals to area of triangle LMN minus total area of sectors, right? Minus total area of sectors. Total area of sectors. So now area of triangle element means आपको क्या करना था, 1.732 को 49 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा 84.87 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई। ओके, 84.87। आप माइनस करोगे टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स, क्या मिला था 77.01। सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, 84.87 minus 77.01, 7 minus 1 6, 8 minus 0 8, 4 minus 7 is not possible, borrow करो, 14 minus 7 7 मीन्स क्या मिला आपको फाइनल आंसर 7.86। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 7.86 centimeter square. Got it? So here we have completed this practice set. Okay, practice set 7.3.